welcome to another episode of Bitcoin Weekly. भाविक और मेरे साथ Yo. यस क्या हाल भाविक, कैसे हो आप? कैसे I am good. I am good. This week has a very good and positive news for Bitcoin space and freedom of speech space. यस Assange, like हाँ, सो दैट्स द मेन टॉपिक आज के लिए कि विकीलीक्स के जो फाउंडर हैं ही गॉट relieved from his prison sentence after a deal though, because वो डील काफ़ी खतरनाक थी. मतलब उनकी जो भी फाइंडिंग्स थे उनको हटाना था अपने वेबसाइट से. बट या विल गेट टू दैट. इट उस पर बात करेंगे. right. क्योंकि उनके निकालते ही दूसरी जगह पे वो प्रॉप अप हो गया था एक टॉरेंट वेबसाइट पे. Torrent पे ना, हाँ. या चलिए, विल स्टार्ट टुडेज एपिसोड. Right. प्राइस तो खैर उतना कुछ ड्रास्टिकली इम्प्रूव नहीं हुआ है फ्रॉम लास्ट टाइम. कोट एंड कोट क्रैश हुआ ही है. लास्ट टाइम इट वाज hovering around 65 I think last week जब Right. हमने हाँ, रिकॉर्ड किया 65. था 1000 के आसपास. And this is expected to go down some more. So who are new to Bitcoin, it is advised, please do not panic and don't sell your coins to the companies and corporations of the world. Otherwise, you'll be missing out on any further potential whatever gains कह लो. What I tell, मतलब ये इसलिए है क्योंकि it has been told कि there are a lot of countries who are currently selling. जर्मनी सेल कर रही है देयर कॉइन्स. एंड माउंट कॉक्स का जो है, द वर्डिक्ट हैज कम आउट एंड दे विल आल्सो बी क्लियरिंग देयर अपने जो भी उनके एक्सचेंज पे थे उनको वापस देने की कोशिश कर रहे हैं. कस्टमर्स को दे रहे हैं, राइट. या दैट विल स्पैन फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर. तो ऐसा नहीं है कि वन शॉट में पूरा डंप कर देंगे. एंड ऑब्वियसली द कस्टमर्स आल्सो गेट टू चूज कि कितना दे वांट टू रीडीम. So over the course of next few months, we will see a turbulent ride. ऐसा नहीं है कि बहुत smooth होगा, and there will be no upside maybe for a couple of months, based on whatever the news is. But हाँ, that's the thing कि आपको panic नहीं करना है, especially now, if you are invested in it for a long time. Right. बाकी health तो on an average is perfect of the Bitcoin blockchain. As of now, आठ सैट पर वी बाइट चल रहा है. सो whoever wants to consolidate their UTXOs, now is the best time to do so. जैसे लास्ट वीक भी था. यूजुअली ऑन सैटरडेज एंड संडेज mempool क्लियर होता है. सो यू गेट आपको कम फी में ट्रांजैक्ट करने को मिलेगा. What is the block height? Block height night rise like 10,000 block होने वाला है just after the halving. 8,49,952. Yeah. So next halving is 2 lakh blocks away, you know. Yes. उसमें लिखा होता है countdown. I think अभी तो नहीं होगा mining और halving. Next halving is April 18, 2028. 3 साल है approx. 200,000 blocks away. 200,050. Yeah. So yeah, difficulty is almost relatively same, right? Like 572 exahash. So it's hovering around 600 exahash. It's dropped a little bit because obviously the miners are facing a lot of heat abhi because price bhi गिर चुका है. So moving ahead, Bitcoin mining, insurance and investment क्या है ये? भाविक आपने कवर किया था ये. लाइक टेक्निकलिटी तो नहीं पता, बट जो माइनिंग रिवॉर्ड्स वेरी करते हैं ना, और माइनर्स के लिए ये बहुत ही कट थ्रोट बिजनेस है. सो हर जगह, जैसे पहले कमोडिटी में भी ऐसा वो होता था, एग्रीकल्चर के लिए फार्मर्स दे इंश्योरेंस होता था. सो अब धीरे धीरे बिटकॉइन माइनिंग में भी आ रहा है. सो आई थिंक माइनर्स कैन हेज विद दिस टूल and they can bet कि कौन लाइक ये अगला ब्लॉक कौन माइन करेगा. So it's a prediction market, so it's a betting market. So I think they can hedge
and they can do so many things. I think it is good for Bitcoin mining, I think, as far as I can understand. No, अब देखते हैं कि इससे और क्या दिक्कत होता है, लाइक बिकॉज ये इसमें स्पेकुलेशन आएगा तो लाइक नाउ ये भी थोड़ा थोड़ा माइनिंग को अफेक्ट करेगा, तो देखते हैं कैसे ड्राइव करेगा, इसमें पैसा आता है तो. You can deposit via Lightning and all. इसमें like I tried to bet. बोलो सर. जो भी स्पेकुलेटर्स हैं उनके लिए एक्चुअली इनफैक्ट अच्छा है. I mean, basically this is no less than gambling, by the way. Whoever is looking at it, ऐसा नहीं है कि this is legit. अभी this is in a testing phase where you can predict कि next block कौन mine करेगा. So if you look at it, you know, there is a certain, and everything of all of this is done on Lightning Network, and it is not done on chain. So if you are familiar with Lightning Network, then venture into this. कि next block कौन mine करेगा. I mean, you can make your calls कि कौन है कौन नहीं. This is an educated guess because Bitcoin mining is completely random. They can, you know, जितना भी आप करोगे, you can, to some extent you can bet. It's as good as you know, predicting कि match कौन जीतेगा, like India या South Africa. So in the last 10 blocks, Foundry USA mined 4 blocks. हाँ. So last week ऐसा भी हुआ था ना कि where Ocean also mined a couple of blocks in the last 48 hours. I think 3 blocks. मुझे ध्यान में नहीं आया है. वो इतना कर दिया. हाँ, वो बहुत ज्यादा किए थे last week. So that was something very, you know, सबको शॉक भी लगा था कि इतने जल्दी कितना कैसे माइन. बढ़िया. हाँ, लेकिन मैकेनिक का कहना है कि कुछ तो माइनिंग इज रिग्ड. हैश रेट जितना वो तुम्हें दिखाते उतना तुम्हें मिल नहीं रहा है. मतलब सो लाइक इफ यू हैव लिसन टू बिटकॉइन मैकेनिक एनी टाइम, वो कह रहा है कि माइनिंग गेम इज रिग्ड, कुछ तो लफड़ा चल रहा है. सो ओशन से पता चलेगा, और हमारे पास इतना डाटा नहीं कि हम कह सकते हैं, बट आफ्टर सम टाइम हम कह सकते हैं. बिकॉज क्या हो रहा है कि उनका जितना माइनिंग शेयर हैश रेट है ना, उससे ज्यादा वो माइन कर रहे हैं. सो ऐसा कैसे हो सकता है, वो उसका कहना था. एक्चुअल हैश रेट कैन बी अ बिट लोअर जो दिख रहा है उससे. आई एम ट्राइंग टू सी कि कितना है माइनिंग. ओशन ने कितना माइन किया है. नाइस. टोटल बिटकॉइन ओशन ने भी गजब माइन किया, 11,000 ब्लॉक्स. ऐसा कैसे हो सकता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, उसका देखेंगे फिर. ओशन का so yeah, ocean mined actually 4 blocks on 22 June 2 blocks on 22 June, 1 on 23rd and 1 on 26th. Right. But their hash rates are almost same, like 1.2 exahash for the last 4 months. It's not increasing. So okay. ठीक है. Cool. Going forward, यहाँ पे Rolls Royce जो है, they have built a micro reactor, and उनका दावा ये है कि it will provide reliable and autonomous energy to multiple markets. Now, again, what we've been telling, and in terms of what we speak of is in Bitcoin mining context, when energy use हो सकता है. But there are companies who are realizing कि nuclear energy is the way forward. And अगर आपको reliant होना है, self energy reliant, you will have to tap into this particular resource because it is clean in forms of, you know, energy usage and production also. But it has its own challenges. ऐसा नहीं है कि it's all जो भी, if you're venturing into this, there will be a lot of setbacks which companies, governments will have to face, because it's not very easy to generate something like this. But इन्होंने एक prototype तो बनाया है Rolls Royce ने, and which they might employ like in their future models. But ये कैसे काम करेगा, we have no idea as of now. But this is a massive development for automobile company, for that matter, to step into this sector. अब तक तो electric vehicle देख रहे थे, but these guys have gone one step further
and राइट। happen to एक इसी वीडियो में उन्होंने देखा है कि पता नहीं, लाइक आई थिंक दे आर टारगेटिंग स्पेस मशीन्स, बिग स्पेस अच्छा मशीन। पता नहीं इसमें इसमें थोक है है? या किसी में, लाइक लोग या दे आर टारगेटिंग स्पेस मशीन एंड रोल्स रॉयस बनाता भी है, लाइक दे मेक जेट इंजन्स। हाँ हाँ हाँ। नासा के साथ भी काम किया हुआ है और करता भी है शायद कॉन्ट्रैक्ट से, तो आई थिंक पता नहीं हम्म, इस वीडियो में उसमें या दे आर टारगेटिंग स्पेस शटल्स, और उसमें इट इज वेरी मच यूजफुल। ओके बाकी कार वगैरह में तो नहीं, आई डोंट बिलीव, बट ये स्मॉल रिएक्टर पे देयर इज अ वन कंपनी, थोरियम एनर्जी। ओके सी देखो, ये दिखा है ना स्पेस, इन्होंने मून दिखाया लास्ट में। या नहीं बट उन्होंने ऐसे बनाया तो मतलब एक्सप्लिसिटली बताया तो नहीं है नहीं तो बताया, बट या दे आर लाइक दे आल्सो वर्क विथ स्पेस स्पेस या एजेंसीज। श्योर या नेक्स्ट थिंग इज आपका फेवरेट भाविक बिटकॉइन राइट। नॉट्स 27.1 हैज बीन रिलीज्ड थोड़ा कुछ ब्रीफ आइडिया अबाउट दिस और पता नहीं इसमें क्या है, बट ये कि बिटकॉइन नोट्स का अपडेट आया है, और इसमें भी मतलब डेवलपर काम कर रहे हैं। वो भी हम्म तो ल्यूक ही कर रहा है, ल्यूक डैश जूनियर इज वर्किंग, ओके बट या नोट्स का अपडेट आया है, सो इट्स गुड। लाइक देखते हैं राइट फिर लास्ट लास्ट वीक बिटकॉइन कोर का भी आया था, बट क्या अपडेट आया करेक्ट वो मुझे नहीं पता, या बट वो इट्स आई ओके। थिंक ये बिटशाला कवर करता है एंड हैविंग सेड दैट लास्ट हम्म वीक आई डिड हैपन टू हैव अटेंडेड हम्म BitSpace. BitSpace is a place in Bangalore where all the Bitcoiners can huddle and meet. It's mostly developer centric, and so whoever is keen on Bitcoin development can reach out to them, or give us a shout out. We will connect you with them if you're really interested in developing on Bitcoin. So राइट। yeah, it's a physical space in Bangalore with like-minded people. You can work over there. तो आपको ऐसे opportunity मिलेगी and to brainstorm and work on different projects. And it's completely free and open source. The FOSS development पे वहाँ पे ज़्यादा importance दिया जाता है. So do visit if you're in Bangalore and if you're interested in Bitcoin development. राइट। ये क्या था भाविक? आई सॉ दिस बट हाँ मैंने हाँ बहुत लंबा था तो काफी सारे वीडियो हैं इसका हाँ हाँ TLDR आप बता दो. हाँ, उसका इनका लाइक ही इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे फ्रॉम आई थिंक 1959। पर ओके इनका लाइक थोड़ा एग्रीकल्चर और उस पे कहना है, जस्ट मुझे रिमाइंड करा इसमें क्या बोल रही है, कैन यू हियर जस्ट अ पॉइंट। मैं लास्ट वीक डाला था इसको, क्या बोल रही है अंकल, पॉइंट क्या था, एग्रीकल्चर का था या क्या था? लैंड इंटरनेशनल कंट्रीज जो है दे आर यूजिंग राइट डंपिंग राइट राइट राइट, डंपिंग कर रहे हैं, हाँ, नोएडा के पास, गुड़गांव के पास। और ये मैंने चीज़ बहुत पहले भी एक बार देखी थी, तो मुझे लगा कि चलो ऐसा नहीं हो सकता, पर अब ये बोल रहे हैं। सो डेनमार्क और वहाँ से जो उनका बड़ी जो यूरोपियन कंट्रीज में जो वेस्ट निकल रहा है, खास करके लीड लीड जो मेटल है, लेट हाँ लेड लेड हाँ सो लेड डंप कर रहा है, और इससे काफी खराब हो रहा है। तो लाइक इंडिया इज डंपिंग ग्राउंड फॉर देम, उनके लिए इंडिया इज बीइंग ट्रीटेड एज अ डस्टबिन, और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। और अब इस गवर्नमेंट की बात आई है तो सबको पता ही होगा अभी भी कितना, लाइक दिल्ली एयरपोर्ट पे वो पूरा रूफ कलेप्स हो गया, जबलपुर एयरपोर्ट में भी एक बीम छोटा सा गिर गया, कार हो या गई दिल्ली एयरपोर्ट में। हाँ, दिस इज जबलपुर एक्सप्रेस राइट, और दिल्ली टर्मिनल नहीं है वन, दिल्ली इसमें या एंड पीपल बिहार लाइक में डेथ भी हुई है। बिहार में 4 ब्रिज कोलैप्स हुए, अयोध्या में मंदिर में वाटर लीकेज हो रहा है, अयोध्या टेम्पल में लीकेज हो रहा है, स्टेशन पूरा पानी से भरा हुआ है। फिर जो अटल सेतु है मुंबई में, जो वो उसमें क्रैक आ गया है। सो कांचनजंगा ट्रेन एक्सीडेंट, बैक टू बैक टू ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, कांचनजंगा हुआ और 6 ये हुआ कुछ 20 जून को, 20, और 6 जून को भी बिहार में दूसरा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। सो हालत खराब हो रही है, लेकिन अब हमें दिख रहा है, देखो फियाट मनी की असर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे दिख रही है। लाइक हमें ये कवर करने का रीजन यही है कि यस ये रिलेटेड इसलिए है क्योंकि अब जब मनी कलेप्स होती है तो पहले तो हम सब महंगाई आएगी, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरेगा धीरे धीरे। ये जो भी कंपनीज है सारी वो
उस बजट पे काम नहीं कर पाएगी, तो उनको प्राइस तो बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि प्राइस बढ़ाएंगे तो वो मार्केट से कम्पीट आउट हो जाएंगे, तो उनको क्वालिटीज गिरानी पड़ती है। तो ये हो रहा है, लाइक क्वालिटीज हमें इतनी इंप्रूव होते नहीं दिख रही है, और इवन क्वालिटी खराब हो रही है। करेक्ट। वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में इतनी मेडिसिन, इतनी पेस्टिसाइड्स, इवन आर्टिफिशियल लैब ग्रोन मीट तो आ ही गया है, लैब ग्रोन वेजिटेबल्स भी आ रहे हैं, लैब ग्रोन फ्रूट भी आ, लैब ग्रोन राइस भी आ रहे हैं। या तो सो ये सब लाइक मैं तो इसको पूरा फियाट का ही समझता हूँ कि पूरी फियाट की ही ये कंसिक्वेंसेज है। फियाट जब मनी कलेप्स होती है तब सब क्वालिटी खराब हो जाती है। लाइक abundance in money creates a scarcity everywhere and lowers the standards of everything. करेक्ट। So this is something, yeah, जैसे हम्म आपने बोला, this is something which is very important and essential for people to understand कि ठीक है, there has been a lot of progress and development in the last few years, but उस progress and development का quality क्या है, that needs to be figured out. And अगर आप in terms of purchasing power ही कह लो, 2004 में this is InvestiWise करके एक कलेक्ट करते हैं, इन्फोग्राफिक बनाते हो, तो 32,000 रुपी जो 2004 में था, that has the same purchasing power as that of 1 lakh rupees today. today तो आप 2004 से लेकर के अब तक 20 साल में, तो your money is rapidly devaluing, losing value. तो आप अराउंड यू भी अगर आप तरक्की देखते हो कि वो किस बेसिस पे बना है, एंड हाउ इज इट मेड, एंड हाउ आर एवरीथिंग। आप फॉर कंपैरिजन से आप देखोगे रोम के टाइम पे या पुराने जमाने में देख लो, 80s से पहले ही देख लो, बिफोर 80s अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इंडिया, द काइंड ऑफ क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड इन टर्म ऑफ आर्किटेक्चर जो बना था, इट वाज रॉक सॉलिड। एक बार बना दिया तो बना दिया, सालों तक चलेगा, सालों मतलब 50 साल 100 साल वैसा आराम चलेगा। से, राइट। आज की जो बिल्डिंग है हार्डली 10 इयर्स 15 इयर्स मुश्किल से चलते हैं, उसके बाद में यू नीड मेंटेनेंस। पहले आप वो घर का ही देख लो ना, अब जो ईंट बनता है, पहले ब्लॉक्स बनते थे, वो मतलब एक्चुअल पत्थर के ब्लॉक्स बनते थे। अभी जो ईंटा बनता है, इट इज मेड पता नहीं क्या क्या दाल की बनता है, बट उसका मिट्टी का भी था, मिट्टी से भी अब वापस चले गए, अब तो पूरा सीमेंट का ईंट आने लग गया ना, कुछ तो सीमेंट का बनाते हैं, पता नहीं कैसे बनाते हैं। पहले प्रॉपर रॉक्स होते थे, लाइक वो 100 साल तक ऐसे ही पड़े रहेंगे। यस। तो आप इंडियन आर्किटेक्चर ही देख लो जो पहले बना था, जो बिफोर इंडिपेंडेंस एंड स्टफ, बहुत अभी भी देखने को मिलता है, अभी भी देखने को मिलता है कुछ कुछ हेरिटेज सिटीज में, लाइक यू कैन विजिट, तो अभी भी है वो प्रिजर्व्ड है अच्छे से। एंड मैन मेड, चलो कोई जाकर के उसको वहां पे टार्निश कर दिया, कुछ लिख दिया, खरीद दिया, दैट इज नॉट वैलिड, दैट इज नॉट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट द बिल्ड क्वालिटी। तो दिस हैपेंड बिकॉज वहां उस टाइम पे मनी भी उतना ही स्ट्रांग था। अभी आपको पैसे ही कम मिल रहे हैं, उसका वैल्यू नहीं हो रहा है, तो जुगाड़ चल रहा है हर जगह, जैसे तैसे करके खत्म करो प्रोजेक्ट, तुम्हें अपना पैसा मिल जाएगा। लोगों का मोरल्स तोड़ रहा है ना ये चीज, लाइक लोगों के मोरल्स टूट रहे हैं, लाइक अच्छे अच्छे लोगों को भी लाइक मजबूर कर रहा है कि भाई कैसे ना कैसे करके कुछ भी गलत प्रैक्टिस या फिर अनएथिकल चीजें करके अपने अपने फैमिली का घर चलाए, है ना, अपनी फैमिली चलाए। लोगों के मोरल्स टूट रहे हैं। नहीं, that's हाँ, करेक्ट, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है। That's the reason, right? Like even if an honest person wants to work, after a point वो क्या करे? Like you see dishonest people working half the time that you are doing, and उनको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं for the things that you जो सेम काम कर रहे हो आप, तो क्यों करेगा कोई honest काम? तो हर चीज में दिखाई देता है, आपके ब्रिजेस देख लो, आपका एयरपोर्ट देख लो, आपका कुछ भी, फूड क्वालिटी, मिल्क इज ऑल फुल केमिकल, वाटर इज केमिकल, लाइक फ्लोराइड वाटर और ये सब डालते हैं, वाटर भी इतना खराब है। एंड ये सारी चीजें अभी और होंगी, लाइक अगर दिस इज इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, यूरोप अगर डेनमार्क में आप देखोगे तो फार्मर्स आर चार्जिंग 100 यूरोस अ काउ फॉर कार्बन टैक्स ऑन एग्रीकल्चर। बताओ, ये कभी नहीं सुना था, एंड ये धीरे धीरे इंडिया में भी आएगा
कि मतलब काऊ रखने में डिस्करेजमेंट मिल रहा है ना, मैं लाइक आई वाज थिंकिंग टू हैव टू फ्यू काउंट्स। हाँ, तो एवरीथिंग विल बी टैक्स्ड। आप यू नो आप अगर गलती से क्रॉप्स ग्रो भी कर रहे हो अपने कंपाउंड, अपने प्रेमिसेस में, हाँ, यू मे हैव टू पे टैक्स फॉर दैट आल्सो इन द राइट। फ्यूचर। आई थिंक हाँ, कुछ कंट्रीज में आई थिंक है या होने वाला है, बट ये राइट, होगा वो ज़रूर है। अभी तक नहीं है ना, इंडिया में तो नहीं है, राइट? इंडिया में तो नहीं है, थैंक गॉड, हाँ, अभी तक तो नहीं है, बट बट आएगा, बट इंडिया बिल्कुल में आएगा। क्या है, राइट, इंडिया में क्या है कि अपने अगर हम यू इफ यू आर नॉट फार्मर्स, लाइक इफ योर फादर्स और ग्रैंडफादर्स आर नॉट फार्मर्स, देन यू कैन नॉट बाय एग्रीकल्चर लैंड। तो ये राइट, भी थोड़ा-सा डिस्करेजमेंट ही है, मतलब लाइक व्हाई एम आई नॉट अलाउड टू बाय एग्रीकल्चर लैंड एंड फार्म समथिंग, ग्रो समथिंग, राइट? या सो ये भी थोड़ा डिस्करेजमेंट ही है। और अगर या काऊ पे लगा रहे टैक्स, सो उनका क्या? जो लाइक बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, प्लेन्स में घूमते हैं, याच में घूमते हैं, उनका क्या? या उन पे टैक्स उन पे लगाओ टैक्स। वो भी गलत ही है। लाइक वी आर नॉट सेइंग कि उन पे टैक्स लगना चाहिए, पर वो लोग बड़े-बड़े प्लेन में घूमते हैं। हमारे लीडर्स, पॉलिटिशियंस सारे लाइक कितने टन उनको जब फ्लाइट्स में घूमते हैं, इतनी कंट्री विज़िट करते हैं, तो कितने टन CO2 रिलीज़ होता होगा, वो कोई नहीं देखा राइट, जाता। और दूसरी बात ये है कि लाइक इन माय सर्कल, इन माय फ्रेंड सर्कल, हाँ, लाइक उनका ये कहना है कि हाँ, गाँव से क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम आ रही है मीथेन इमिशन करके, लाइक काऊ इमिट हुँ, मीथेन, तो वो उनका भी कहना है कि गाय सही नहीं है, लाइक या है उनका कहना। सो अच्छा, तो उनको बट आपने ऑरेंज पिल नहीं किया? डिड नॉट टेल देम अबाउट बिटकॉइन माइनिंग लाइक कि कैसे सॉल्व कर सकता है? लाइक उनको लाइक ही सेज कि मुझे पता है बिटकॉइन का प्राइस भागता रहेगा। ही हुँ, आल्सो बॉट सम बिटकॉइन फ्रॉम लाइक हुँ, आई मैंने वो भी उनको अरेंज कर दिया। हुँ, बट लाइक ही फॉर हिम बिटकॉइन इज जस्ट लाइक अ डिफरेंट स्टॉक इन्वेस्ट, लाइक हुँ, जो वो डिसेंट्रलाइजेशन जो सिस्टम है, ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स, वो उनके खिलाफ, लाइक उनको ये लगना, उनको ये देख, सबको ये लगता है कि वी नीड सम लीडर्स, वी हुँ, नीड समवन टू पुट सम रूल्स ऑन द पीपल, या कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बस ये कि ऐसा होना चाहिए, ये करना चाहिए, वरना सही नहीं है। सबको यही बस बाहर से एनफोर्स करना है। वो जो ये जो साइकोलॉजी है ना कि भाई ऐसा होना चाहिए, वो हुँ, वहाँ प्रॉब्लम है ना। लाइक जो स्पॉन्टेनियस ऑर्डर है कि भाई यू जस्ट गिव फ्रीडम एंड रूल्स, थोड़े-थोड़े रूल्स अपने आप इमर्ज होंगे, राइट? लोकली रूल्स इमर्ज होंगे। और वो राइट, रूल्स भी हर कंट्री में एक रूल्स होना भी ज़रूरी नहीं है। लाइक हर गाँव में छोटे-छोटे डिफरेंट-डिफरेंट रूल्स हो सकते हैं, जैसे जिसको पसंद है। लाइक तुम जैसे अभी यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड इंडिया में लागू होने जा रहा है या फिर आई थिंक हो गया है, वो भी गलत है, हुँ, राइट? यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड सबके लिए एक ही रूल्स, ये गलत है यार। लाइक ये वन नेशन वन इलेक्शन, ये सब बकवास है यार। लाइक क्यों, तुम डाइवर्सिटी चाहिए ना, लाइक डाइवर्स जितनी चीज़ डाइवर्स होती है, उतना वो इम्यून होता है, इतना वो रेजिस्टेंट होता है बाहरी प्रॉब्लम से। जब भी कुछ बाहर प्रॉब्लम आएगी, तो वो उससे फाइट कर सकता है। लाइक वरना अगर सब कुछ एक सिस्टम हुआ, तो छोटा-सा प्रॉब्लम हुआ तो सारा सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। वी डोंट नीड सेंट्रलाइज्ड सॉल्यूशन। यू आर म्यूटेड। ओह हुँ, सॉरी। तो वही मतलब सेंट्रलाइज़ेशन हुँ। इज़ द क्या बोलते हैं? लाइक इज़ द आगे चल रूट के कॉज़ ऑफ दैट प्रॉब्लम। या व्हाट विल सी इन द फ्यूचर इज़ अ लॉट ऑफ छोटे कंट्रीज़ या कम्युनिटीज़ बीइंग राइट। फॉर्म्ड, एंड ये हो रहा है। इट इज़ एक्टिवली हैपनिंग हुँ, अक्रॉस द वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया में नहीं। हुँ, हुँ, वी हुँ, आर हुँ। गेटिंग टू सी स्मॉल communities being formed. हुँ, So yeah, हुँ। लाइक वो भी it's a डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा हो रहा है ना, अफ्रीका अफ्रीका yeah, और लैटिन अमेरिका में मेरे ख्याल से होते दिखेगा, एंड विदिन एंड आफ्टर द एंड ऑफ दिस डेकेड इंडिया में होते दिखेगा, एंड डेवलप्ड correct. कंट्रीज़ में सबसे लास्ट में होगा मे बी। Yeah. फिर वन वन नेशन वन इलेक्शन की बात आई तो फिर ये भी पता होगा कि नीट का सबसे बड़ा अभी मुद्दा चल रहा है। लाइक Hmm. दे कांट इवन ऑर्गेनाइज अ सक्सेसफुल एग्जाम। नीट एग्जाम में भी जिस लेवल पे फ्रॉड हुआ है, लाइक, और ये मैं तो इस स्पेस में, एजुकेशन स्पेस में जुड़ा हूँ, JEE नीट में। सो मुझे पता है कि 10 साल 2016 से मुझे पता चला था कि नीट में गफला हो रहा है, कुछ ना कुछ तो गफला हो रहा है, पेपर लीक हो जाते हैं, लाइक वो पेपर वो नहीं कर पाते, वो हैंडल नहीं कर पाते, और Hmm. उनके कोई पॉलिटिशियन के बच्चे
ऐसे ही बन जाते हैं डॉक्टर, लाइक उनकी नीट में रैंक आ जाती है, डॉक्टर भी बन जाते हैं विदाउट गोइंग टू कॉलेज। लाइक मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा बट है ऐसे काफी लोग, आप सर्च करोगे तो बड़े बड़े सीएम के बच्चे भी नीट में टॉप रैंक उनकी आई है, डॉक्टर बने हैं, और उसमें भी एमबीबीएस में भी टॉप किया है विदाउट गोइंग टू कॉलेज, लाइक बिगेस्ट, लाइक वन ऑफ द बिग नेम सीएम है वो। सो हो रहा है लाइक, सो एक एग्जाम हैंडल नहीं हो रही उनसे, और ये सब हमारी गलती है कि हमने उनको हर चीज स्टेट बोल रहा है कि ऐसे करो, हम वो माने जा रहे हैं, क्या ठीक है भाई, हम अपोज करो यार, सब लोग विरोध करो चीजों का, और पहले ही ध्यान रखो, जब अब पूरा हैंडल हो जाता है और लास्ट में 10-7-8 साल तक एक्सप्लोटेशन होता है, फिर इतना बड़ा मुद्दा बन जाता है कि हम फिर बोलते हैं कि भाई एनटीए के चीफ को हटाओ, जांच पिन बढ़ाओ, री एग्जाम करवाओ। भाई री एग्जाम करा देंगे बट बच्चों का क्या? 25 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है उन्होंने, और 2 साल 3 साल 4 साल तक मेहनत कर रहे हैं, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट रूल्स है। पर ये सारी जो प्रॉब्लम है सब सेंट्रलाइजेशन की प्रॉब्लम है, और इसमें मनी का सबसे बड़ा हाथ है, फियाट मनी का। और लाइक जो भी लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राइट? फार्मर प्रोटेस्ट में फार्मर का प्रोटेस्ट हुआ था, नीट में अभी ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, टीचर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट दे डोंट नो कि द सॉल्यूशन इज द फियाट मनी। इकोनॉमिक्स में म्यूचुअल फंड में भी गफला हुआ, अभी पता है ग्रो में वो भी गफला हुआ, लाइक इन्वेस्ट नहीं बट कर रहे हैं। उनका वो मैंने और देखा और पढ़ा था, दो स्टोरीज हैं। ग्रो का भी अपना बोलने का एक चीज है कि जो हुआ था, जो अमाउंट था कुछ हंड्रेड्स ऑफ रुपीज थे, ग्रो ने वापस कर दिए इमीडिएटली उसके बैंक अकाउंट को। बट ये जो ट्विटर पे लिखा था ना कंप्लेंट, या लिंक्डइन पे जो लिखा था लिंक्डइन पे कंप्लेंट, लिखा था, हाँ। उसने बोला भी था कि मैं अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाऊंगा कि मुझे नहीं मिला है एंड ऑल दैट। ग्रो ने वापस दिया था एंड उन्होंने क्लैरिफाई किया कि हमने पैसे लौटाए हैं, आप चेक करो जितना अपना। रिटर्न था हाँ, उतना सब। हाँ। अच्छा, तो मैंने ये पढ़ा कि उन्होंने ऐसा बोला कि हाँ, हैवी सम, बहुत ज्यादा अमाउंट दिया ताकि मैं हाँ। पोस्ट हटा रहा हूँ। नहीं, ऐसा तो अगेन दो पहलू हैं इसके। आई डोंट नो हु, क्योंकि ग्रो इज आल्सो नॉट वेरी ट्रांसपेरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन। वरना राइट, इतना अगर श्योर होते तो बोलते कि रहने दो, ठीक है, वी हैव क्लैरिफाइड योर स्टांस, पोस्ट हटाने की क्या जरूरत थी। राइट, सो राइट। इसमें बोल नहीं सकते कौन गलत है कौन सही अभी तक फिलहाल, बट फ्रॉम या द लाइक नो। देयर आर सम ग्रे एरिया, राइट? लाइक वी कांट बी श्योर, लाइक है ना, या वेरिफिकेशन तो है नहीं और वो ओपन भी नहीं कर रहे हैं, सो हमें ट्रस्ट ही करना पड़ रहा है, उस पर ट्रस्ट आ ही रहा है। और ना अब हमारे पास ऐसी चीज है कि हम ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, और हम खुद ऑडिट कर सकते हैं बिटकॉइन नोड को। तो like why don't we learn bitcoin, why don't we study bitcoin, why don't we work into bitcoin, why don't we earn bitcoin, right? Why don't या we give our time for bitcoin instead of fiat money, instead of ट्रू, rupees or dollars? एब्सोल्युटली। So but होते दिखेगा, like ये, like someone says कि like there is not enough pain in India or in anywhere else कि bitcoin adoption आया है। अभी नहीं है उतना पेन, उतना दर्द नहीं है लोगों को, like people are ready for, people are bearing, अभी तक साइन कर रहे हैं। सो सहन शक्ति बहुत चलिए। ज्यादा बढ़ गई है लोगों की। ज्यादा ही बढ़ गई है सहन शक्ति। वो पहले से था ना, ऐसे नहीं है। उसका फिर गलत धीरे फायदा धीरे, होता है। है ना, धीरे धीरे बढ़ घटाई ना, मतलब धीरे धीरे, पहले थोड़ा तंग किया, धीरे धीरे, लाइक एक साथ तो नहीं हुआ है, 25 30 40 साल में हुआ ये या सहन या शक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट। सो हम्म द न्यूज कि विकीलीक्स की फाउंडर जूलियन असांजे is free, and he was put in jail for exposing 5 the years crime, ago। exposing the crimes of the US empire। यूएस, या हाँ, जो बहुत सारे फाइल्स थे इनके इन टर्म्स ऑफ 2008 या 2010 से ये लोग पब्लिश कर रहे हैं, 10 से, 10 राइट। and there is a detailed Twitter post. If anyone's interested, reach out to any one of us, we'll share it to you. कि एक एक पोस्ट में लिखा था कि क्या क्या चीज है एंड व्हाट वाज एक्सपोज्ड। बड़े लॉग फाइल्स थे। इट वाज पुट आउट इन ऑन द वेबसाइट फॉर एनीवन टू सी एंड सी फॉर देमसेल्व्स। तो इसके चलते यूएस गवर्नमेंट ने दे मेड अ केस अगेंस्ट जूलियन, एंड इनको भागना पड़ा था।
in multiple हम्म countries. He had to escape and take care of हम्म himself in terms of to not be बैंक imprisoned अकाउंट for भी सीज किया था, पेपल सारे पेपल बंद कर दिया 2010 में, एंड देन yeah, दे स्टार्टेड टेकिंग द मनी इन बिटकॉइन। right, और सबसे पहले बिटकॉइन का जो हेडलाइन न्यूज़ में आया था वो जुलियन असांज के डोनेशन से आया था। विकीलीक्स के बाद ही, लाइक विकीलीक्स का बैंक अकाउंट सीज करने के बाद मीडिया में बताया था कि ही इज गेटिंग डोनेशन इनटू सम क्रिप्टो, सम डिजिटल इंटरनेट करेंसी कॉल्ड बिटकॉइन, उसमें आया yeah, था। और उसके बाद से लाइक द डिसअपीयरेंस ऑफ सतोशी इज लिंक्ड विद द न्यूज़ ऑफ विकीलीक्स। जब से आया, सतोशी ने बोला कि लाइक कि कोई और तरीके से बिटकॉइन का नाम आता मीडिया में तो मुझे अच्छा लगता, पर ये है yeah. कि मधुमक्खी तो के वो छत्ते जाते पे नहीं थे। किसी और ने, हाँ Yeah, राइट, ही यूज्ड वर्ड कि मधुमक्खी के छत्ते पे किसी और ने पत्थर फेंका है और अब hmm, मधुमक्खियां सारी उड़ के हमारी तरफ आ रही है। right. बिटकॉइन का नाम Ne- खराब हो रहा था तब, तब but बिटकॉइन का नाम again, खराब हुआ था। Julian also हम्म waited for a while. He listened to Satoshi जो भी वो बोल रहे थे, कि बोले कि हम्म ठीक है अभी मैं नहीं करूँगा एक्सेप्ट, जब तक हमारे फंड्स ड्राई आउट नहीं हो जाते, we will ओके keep our traditional finance के channels open. ओके 2016 2017 में वो जब जंप हुआ, 2013 में शायद जब जंप हुआ था प्राइस हम्म में, देन इन्होंने हम्म ओपनली बोला कि वी आर एक्सेप्टिंग, विकीलीक्स ने बोला कि वी आर एक्सेप्टिंग डोनेशंस इन बिटकॉइन। हम्म एंड तब यूएस गवर्नमेंट को ये भी बोला कि देखो इतना प्राइस इंक्रीज भी हुआ है, आई थिंक 50,000% ऑफ प्राइस इंक्रीज। सो हम्म एक तरीके से इट वाज अ ब्लेसिंग फॉर विकीलीक्स एंड जूलियन इटसेल्फ दैट यूएस and all the other governments had restricted their channels for their राइट payments. So this happened over the last few days where he was free, and he's in Australia as of now. And yeah, इसकी राइट, सारी लाइक अभी ना डिटेल्स। भी लाइक ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने भी काफी पुश किया, और या बट ठीक है, लाइक एंड वो अपने प्राइवेट प्राइवेट जेट में या फिर जेट में गया है, एंड ही इज नॉट अलाउड टू ट्रैवल इन अ बिजनेस और इकोनॉमी क्लास, सो प्राइवेट जेट लेना पड़ा। लाइक पीपल डिड डोनेट, सब किसी ने एक दो बिटकॉइन भी डोनेट किया आठ आठ एनोनिमस। बिटकॉइन 8। 8 बिटकॉइन, 8 बिटकॉइन इंडिविजुअल ने फ्रॉम वन अकाउंट, राइट? हाँ फ्रॉम। तो स्पेकुलेशंस ये भी थे कि जैक डॉर्सी ने दिया था बिकॉज उनके ट्वीट का टाइमिंग एंड राइट, वो मेमपोल मेमपोल में ट्रांजेक्शन ट्रांजैक्शन था, था, राइट राइट। इट वाज बट दिस कोइंसाइडिंग। इज ओवरऑल गुड न्यूज, राइट, गुड न्यूज है, बट अगेन ये सब मुझे पॉलिटिक्स ही लग रहा है। लाइक बाइडन के इसको छोड़ना, ट्रम्प का बोलना कि स्नोडेन को छोड़ेंगे, है ना, या रोस उल्ब्रिच को छोड़ बाहर निकाल देंगे, ये वगैरह। सो ये पॉलिटिकल मूवी लग रही है। या मतलब Everything- yesterday आपने वो डिबेट के हाइलाइट्स तो देखे होंगे, यूएस डिबेट के। हाँ आई मीन सेल्फ सैबोटेज कर रहे हैं हम्म दूसरे को। हम्म मतलब आई डोंट सी बोथ ऑफ देम फिट फॉर द हम्म ऑफिस, हम्म बट खैर हम्म वो उनका इंटरनल मैटर है, हम उसमें हम्म दखल नहीं देंगे। बट या बाइडेन जा रहा है, और या अब ना आज ये भी दिख रहा है लाइक न्यूज में कहीं कि इट वाज ऑल प्रोपेग लाइक इट वाज ऑल प्लान्ड, बाइडेन का एग्जिट भी, बाइडेन का डिमाइज इज आल्सो प्लान्ड, ये भी बोल रहे हैं कि अच्छा जानबूझ के सीएनएन फॉक्स हर कोई बाइडेन के खिलाफ बोलने लग गया अचानक ही, या और ये बोल रहे हैं ये भी प्लान्ड है, कुछ प्रूफ के साथ भी बता रहे हैं। बट हाँ, इधर इट्स अ पॉलिटिक्स और ये सब तो चलता ही रहेगा यार, बिकॉज इट्स द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इलेक्शन ना, सबसे बिगेस्ट इकोनॉमी का इलेक्शन है, तो ये सब तो होगा, लाइक काफी इधर उधर होगा मार्केट में। या बट इट्स अ गुड न्यूज कि असांजे इज फ्री। या हम्म चलिए आगे बढ़ते हैं। इन राइट टर्म्स ऑफ wallets in हम्म on Bitcoin, there are a lot और of लाइटनिंग, राइट yes, there are a lot of lightning related talks that we do. हमने लास्ट टाइम भी बात की थी ऑन टर्म्स ऑफ सेल्फ कस्टडी एंड सीड साइनर के बारे में बात किया था, बट दैट वाज मेनली फॉर ऑन चेन। फॉर लाइटनिंग वॉलेट्स दीज आर सम ऑफ द सॉल्यूशंस व्हिच आर आउट देयर इन द ओपन। आप प्ले स्टोर में देख लो, प्ले स्टोर में देख लो, या तो एप्पल प्ले स्टोर में देख लो। हम्म These are recommended by everyone in the Bitcoin community, most of them at least. बहुत सारी चीज़ों पे
Lightning itself is 2017 में start हुआ था. There have been massive improvements in the performance of Lightning itself, but most of these apps, at least 40% of these apps, are in its nascent stage. So whenever you're trying, try it with minimal amounts of sats. ऐसे नहीं कि आपके बहुत सारे sats थे, आपने यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर दिया. So be responsible if you are experimenting with this. Right. Is what we'd say. तो आगे चल के in terms of long-term investment, MicroStrategy is better option than Bitcoin mining stocks. अब Bitcoin mining में भी there has been since the last few days and weeks because of the price जो sideways में चल रहा है और it has dipped. A lot of miners are shutting shop or they are facing troubles के कैसे चलाएं because their daily operations is dependent on the price increase of the Bitcoin itself ताकि वो open market में बेचें and they can sustain the operations. अब इसके चलते a lot of miners have resorted to selling their operations or either merging with other miners, or some people have gone ahead and they have bought small scale miners. And अभी recently और एक Marathon Digital करके है, they have started mining another cryptocurrency called Caspa, जिससे बहुत सारे Bitcoiners have been pissed at them कि what is this, मतलब क्यों कर रहे हो. They might have their own reasons. Maybe Caspa में ज़्यादा percentage या profit मिल रहा होगा. They might dump it on the market as soon as they are mining it. That's for operational reasons. उन्हें करना पड़ता है. I mean, miners को stabilize करना हो, if they have to look at profitability, they'll have to look at other avenues as well. Right. Only Bitcoin mining will be a little challenging for any miner, large scale miner, अगर मेरा opinion हो तो. Because again, ethos ठीक है, everyone in the space, they have Bitcoin's interests in their mind and hearts, but at the same time, if you have to sustain लंबे समय तक in the market, you will have to survive, and for surviving they are finding alternatives. बहुत सारे miners are also in the space of data centers. Now that also is another opportunity in terms of making money, which again can be used to fund operations of the miners and mining rigs. तो मुझे लगता है कि I think they are doing they're mining Caspa for that reason, but again time will tell कि क्या होता है उसका. Right. Now इस particular chart में दिखाया गया है कि MSTR, which is MicroStrategy, which has Bitcoin in its treasury, in comparison with Bitcoin mining stocks and Bitcoin अगर आप self store करते हो, like in your cold wallet or in your particular wallet. So these are the things: Bitcoin price correlation, risk from BTC price volatility, commissions, counterparty risk, transferability, liquidity, scarcity. इन सब मामलों में Bitcoin अपने custody में hold करना is much more efficient than MicroStrategy का stock खरीदना और Bitcoin mining का stock खरीदना. But in terms of, obviously, it's a bearer's asset, Bitcoin is a bearer's asset and it does not generate yield. So अगर आपको कोई बोले कि मुझे आधा Bitcoin दे दो, मैं तुम्हें 2 Bitcoin दे दूंगा after 6 months, please उनसे दूर रहिएगा and get out of there as soon as you can, because that does not happen. Bitcoin does not generate interest, does not generate yield, ऐसा कुछ नहीं है. And इसके against आप collateral या like margin नहीं ले सकते. Like you can't have, अगर आप right. हाँ 1 BTC pledge कर रहे हो तो आपको 4 BTC कोई ला करके नहीं दे रहा है. There is a fixed supply of 21 million and regularly daily 450 Bitcoin mine होता है on a global level. Right. So but for marginable, like we will have some services, right? Yeah, services तो हैं, but again those services are private organizations, and वो कब कैसे पलट जाएं we don't know. So do your due diligence before if you want to either venture into these things or not. So yeah. So Bitcoin is a good option, right? Yeah, in cold That's storage. the conclusion. Right. Yeah, in cold storage. तो खैर one more point, आपको cold storage में क्यों रखना है
दिस इज अ वेरी गुड रिमाइंडर कि अभी रिसेंटली न्यूज निकली है कि जापानीज लॉ के तहत FTX Mt. Gox creditors will get $483 per Bitcoin in Bitcoin. That means 0.008 Bitcoin per one Bitcoin held at the time. तो जिनका FTX में था या Mt. Gox में था, अगर if you had one Bitcoin back then and आपने खरीदा था for that value and it has appreciated over the course of time, but आपको appreciated value नहीं मिलने वाला है. You will only get 0.008 Bitcoin equivalent in your wallet या जो भी आपको withdraw करना है जब कर सकते हो. This is one of the reasons why Bitcoiners are heavily vocal about self custody. ऐसे बहुत सारे cases. हाँ, this is one more thing. If you held 5 Bitcoin on FTX, you would receive 84,355 instead of their current value of 308,000. Right. So this is the main lesson for now, for all of time. कि exchanges से खरीदो and FTX में भी ऐसे ही हुआ था ना? या ये FTX की ही बात है ये. मतलब उस टाइम पे जो प्राइस थी उतना ऐसा बोल रहे थे कि जब वो एक्सचेंज कोलैप्स हुआ FTX, उस टाइम पे जो प्राइस थी वो प्राइस मिलेंगी उनको, वही पैसे उतने पैसे मिलेंगे, वो डॉलर मिलेंगे उनको, बिटकॉइन नहीं मिलेंगे बिकॉज करेक्ट. हाँ. तो अगर ये एम्प्टी गॉक्स की न्यूज सही हुई तो लाइक देयर विल बी लेस सेल प्रेशर और ये सब पैनिक ही हुआ, बस मार्केट में पैनिक क्रिएट हुआ बिकॉज जब एम्प्टी गॉक्स की न्यूज आई थी तो बिटकॉइन फेल 5%, 4 to 5% में भी. या तो इन सब न्यूज में नहीं पढ़ने का, लाइक रिटेल्स पढ़ भी रहे. यस, प्राइस का अगर वही ना, प्राइस का ठीक है देखने के लिए सुनने के लिए अच्छा लगता है, बट इन द लॉन्ग रन it does not matter if you know the fundamentals of what Bitcoin is and why it was made. That is why you see a lot of Bitcoiners, they are very chill in terms of what they want to do. The objective is to educate people about the importance of Bitcoin rather than talking about price very often. But हाँ, education के terms में ये भी आता है कि अपना self custody, this is one of the paramount things, and that's why you have services like these. Lightning wallets हो गए या दूसरे kinds of wallets हो गए. Explore with them, play with them. आपको खुद पता चलेगा क्या चलता है क्या नहीं चलता है. कुछ doubts हैं बताइएगा, पूछिएगा. We are always here to help you with it. Right. Yeah. Coming to the Indian landscape, digital rupee transactions facing a slump after reaching initial RBI target. कि यहाँ पे RBI started a pilot for e-rupee, which is a digital alternative to physical cash, which is also a CBDC, in December 2022, and successfully reached a target of 1 million retail transactions per day by December 2023. तो ये इसलिए हुआ because बैंक्स को बोला गया था to push up transactions by offering incentives. तो हर जगह incentive चलता है to retail users dispersing portion of bank employees' salaries using the e-rupee. तो ये जो यूजर्स थे 1 मिलियन रिटेल थे, उसमें बैंक एम्प्लॉइज की भी सैलरीज उनको मिल रहे थे in terms of yeah. But now that the push has diminished, daily transaction numbers have fallen to about 100,000. Say two of the sources were yeah. So this shows there is little organic demand to use the e-rupee, said a third source, a banker involved in the project. तो यही है कि अगर आपके पास यूपीआई जैसा फ्लॉलेस ऑल्टरनेटिव है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, तो आपको सीबीडीसी जैसा कॉन्सेप्ट रिलीज करने की, एटलीस्ट फॉर द रिटेल पर्पसेस, करने की जरूरत क्या है? नहीं है. राइट, जरूरत ही नहीं है, लाइक फॉर अ लॉट ऑफ इंडियंस एंड विद द न्यू यूसेज. अगर आप बट क्यों कर रहे हैं वो? लाइक आई वांट टू आस्क, क्यों कर रहे हैं सीबीडीसी? क्यों करते हैं? कोई भी कंट्री क्यों करता है फॉर कंट्रोल, मोर कंट्रोल. लाइक जनता को पता नहीं, जनता को लग रहा है कि ये ट्रांजैक्शन स्मूथ के लिए, बट लाइक सीबीडीसी जो डिजिटल रुपीस है उसमें वो लोग पूरा ट्रैक कर पाएंगे कि तुमने, लाइक इट्स लाइक अ डिजिटल कैश. हर एक नोट में, लाइक डिजिटल रुपये में 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपये के कॉइन रहते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, और उसमें सीरियल नंबर होता है, तो उनको पता है कि तुमने ये पैसा कहाँ स्पेंड किया आगे, और आगे वो कहाँ घूम रहा है चेन में, और उसके हिसाब से वो तुम्हारा सारा ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल सर्विस सर्वेल कर सकते हैं, और उसके बाद अभी टैक्स आएंगे.
देखो आएंगे, क्योंकि अब अभी पता चला, देखो इसमें लिखा है कि एम्प्लॉयज को सैलरी मिली है। सो Yeah. वो, और वो बेचारों ने रखी भी होगी सैलरी उसमें, और उसमें एक्सपायरी भी होगी। तो अपना पैसा एक तो कमाओ, और उसमें फिर एक्सपायरी, और अपना पैसा वेस्ट कर रही है, तो टैक्स पेयर्स का पैसा वेस्ट कर रहे हैं ना फालतू। कैसे प्रोजेक्ट में पहले तो इंसेंटिव देके प्रोजेक्ट चलाते हैं, फिर फेल होता है, जबरदस्ती करना चाह रहे हैं। राइट। अब बात तो ये भी है ना कि यूपीआई का ट्रांजैक्शन, बात तो बहुत टाइम से चल रही है, आई डोंट नो हाउ फार इट इज ट्रू एंड कब इम्प्लीमेंट होगा, कि यूपीआई ऑल्सो आफ्टर अ पॉइंट विल नॉट बी फ्री। आपको उस पे भी 1 रुपया हो या 2 रुपया हो देना पड़ेगा फॉर एवरी ट्रांजैक्शन दैट यू डू। सो नथिंग, अगर आप कंपेयर ऐसे करते हो, the same thing it happens on Bitcoin network. अगर if you're transferring from one address to the other address, you have to pay minor fee. So nothing in the world is free. कुछ चीज अगर आपको फ्री बेची जा रही है, it has a breaking हो ही point. नहीं सकता। Yeah. तो after a फिजिक्स, point it is थर्मोडायनेमिक्स, possible. लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। Yes. सेम अगर आप जियो का एग्जांपल ले लो, कुछ साल पहले हाँ, कितना था, 1900? फ्री था। हाँ, फ्री ही था। अभी यू हैव स्टार्टिंग में तो 20। फ्री था, अब तो तो उसके चलते, बिकॉज अगर इफ यू आर लुकिंग एट द टेलीकॉम प्राइसेस, बिकॉज कंपटीटर्स इतने कम हैं मार्केट में, जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है। वोडाफोन इज ऑलमोस्ट, आई डोंट नो, नेग्लिजिबल कह और रहा ये हूँ। कंपटीटर कम किए जा रहे हैं, पता है आपको। कंपटीटर सरकार कम कर रही है कंपटीटर्स, लाइक बीएसएनएल को पूरा सरकार ने स्ट्रक्चर वे में तोड़ा। पूरा या बीएसएनएल वाज अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज, एंड या उन्होंने स्ट्रक्चर वे में तोड़ा उसके सारे, उसको फंड बंद कर दिया, और उसके सारे जो टावर्स थे वो एकदम चीप रेट में, टेंथ 1/10 प्राइस में जियो को दिए गए हैं। या लाइक इफ यू स्टडीड, सो पूरा स्ट्रक्चर मोनोपोली क्रिएट करती है। गवर्नमेंट का काम ही है मोनोपोली, क्योंकि एक मोनोपोली जब आ जाती है, इतनी सरकार इज द बिगेस्ट मोनोपोली, गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट मोनोपोली। जब एक मोनोपोली आएगी तो हर जगह मोनोपोली क्रिएट करेगा खुद के फायदे के लिए। तो जो भी देख रहे हैं, आंख खोल के सपोर्ट करो, बंद करो, सरकार का सपोर्ट करना बंद करो। लाइक वी डोंट नीड गवर्नमेंट्स, दिस इज द बिगेस्ट स्टेटमेंट इन दिस इन आवर चैनल। देखते हैं, बट वी डोंट नीड गवर्नमेंट, लाइक गवर्नमेंट नीड्स अस, और वी नीड लाइक प्राइवेट एंटिटीज, जो सारा, लाइक गवर्नमेंट डजंट प्रोड्यूस एनीथिंग, दे जस्ट स्टील फ्रॉम अस। तो जितना सरकार के हाथ में होगा ये सब, तो वो हमारे पैसे वेस्ट करेंगे ही। तो ये तो हम तो बस एग्जांपल बता रहे हैं कि देखो ये हो रहा है। ई रुपये में भी कितना पैसा वेस्ट किया होगा इन्होंने, पायलट प्रोजेक्ट में कितना ही पैसा वेस्ट किया होगा, बड़े बड़े इंजीनियर्स को हायर किया होगा, है ना। खैर, आगे चल के इसी से रिलेटेड, इंडिया का एक्सटर्नल डेट as at end of March 2024 is 663.8 बिलियन। इसका ये बढ़ रही मतलब है इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू द एक्सटर्नल डेट। राइट। तो so like we almost hold this much amount of forex reserve, around yeah 600 billion we have forex reserve, yeah so we don't have forex reserve, right? अगर, yeah और ये 10 साल पहले, like we it was less than $200 billion when the yeah current government came into power in 2014। मैंने एक ट्विटर में थ्रेड भी लिखा था एक साल पहले, अच्छा कि कैसे 10 साल में जीडीपी तो इंक्रीज हुई है, बट डेट इंक्रीज्ड फास्टर देन द जीडीपी, राइट। सो तो अभी जो 10 साल में जितनी भी ग्रोथ है वो सारी डेट फ्यूल्ड ग्रोथ है, नथिंग इज ऑर्गेनिक। पूरा प्रिंट किया है पैसा, और प्रिंट किया है, और वही ग्रोथ में दिख रहा है। और हमें जीडीपी, लाइक 10 साल पहले परचेसिंग पावर के टर्म्स में देखो तो, लाइक आई थिंक द मनी, द वैल्यू ऑफ द परचेसिंग पावर ऑफ रुपीज विल बी लाइक इज हाफ, राइट, ऑलमोस्ट हाफ होगा, लाइक ऑफ है ना, कोर्स हाफ के अराउंड ही होगा। yeah एंड जीडीपी इज डबल, जीडीपी डबल हुई है, कुछ 2 से 4 भी नहीं पहुंची है, जीडीपी डबल भी नहीं हुई है कहने के बाद तो। और डॉलर भी ऑलमोस्ट, और डॉलर में मेजर कर रहे हैं तो डॉलर भी उतना ही डिवैल्यू हुआ है, डॉलर की वैल्यू भी हाफ ही हो गई है विद इन 10-11 ईयर्स में। सो रियल में देखो तो कोई ग्रोथ है ही नहीं। लेकिन इसमें लोग ये पूछेंगे कि यार रोड्स तो बन रहे हैं, स्टेशन बन रहे हैं, तो ये सब तो प्राइवेट एंटिटीज का काम है, वो अपने आप होगा, कोई भी गवर्नमेंट होगी वो अपने आप विकास होना ही है, लेकिन गवर्नमेंट इसका श्रेय ले जाती है सारा। बट इंडिया की सिचुएशन खराब हो रही है भाई, लाइक
बहुत खराब हो रही है सिचुएशन, बहुत खराब हो रही है, लाइक अनबिलीवेबल। इतनी बैक टू बैक खराब न्यूज़ आ रही है ना कि मतलब न्यूज़ दबे जा रही है। अभी नीट की न्यूज़ दब गई, फिर कुछ भी मणिपुर में कुछ हुआ था वो न्यूज़ दब गई, सारी सारी न्यूज़ दबे जा रही है। न्यू कुछ चीज़ इतना आता जा रहा है कि किस-किस चीज़ में प्रोटेस्ट करें लोग। सब परेशान हैं, सब परेशान हैं। और ये होगा ही, तुम कोई एक लीडर के नाम पे वोट करोगे, बोलोगे कि कुत्ता रहेगा या कोई भी खड़ा रहेगा मेरे लोकल में, मुझे मैटर नहीं करता, मुझे सेंट्रल में यही लीडर चाहिए। तो फिर यही होगा, तुम्हारे लोकल लीडर तुम्हें ही लूट के चले जाएँगे, उनको कोई मतलब नहीं। और वो भुगतना किसको पड़ेगा? हमारे बच्चों को, हमारे फैमिलीज़ को, हमारे भाई-बहनों को, बीवी-बच्चों को, सबको भुगतना पड़ेगा। और ये लोग समझ नहीं रहे। लोगों को ही समझना है फाइनली। लेकिन ठीक है, लाइक नाउ आई विल स्टॉप टॉकिंग। नहीं, नहीं, समझ में आता है फ्रस्ट्रेशन, बट आफ्टर पॉइंट क्या या लाइक ये सब फ्रस्ट्रेशन है, राइट। चलिए पर स्टिल अभी आई एम हैप्पी बिकॉज़ बिटकॉइन, लाइक हाँ, वो तो है। पहले तो फ्रस्ट्रेशन थी कि कुछ पता नहीं था, लाइक अब ठीक है कि हो जाएगा, टाइम लगेगा लेकिन होगा सही, या बट एटलीस्ट है ना? सॉल्यूशन तो है, पहले सॉल्यूशन भी नहीं था। राइट। हुँ, खैर, ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक हुँ, ने डिजिटल यूरो इज अच्छा, अनदर सीबीडीसी जो यूरोपियन राइट, एरिया में आता है। उन्होंने हुँ, अपना एक रिपोर्ट निकाला है जिसका मेन फीचर है टू सर्वेल यू, टू डीप्लेटफॉर्म you, to freeze your account, to limit how much you're allowed to hold in your account. And this बताओ। is the TLDR version of what that report says. आप अगर देखना चाहो, हुँ, पढ़ना हुँ, चाहो, प्लीज गो अहेड, यहाँ पे है एक लिंक है, लेट अस नो, विल सेंड इट टू यू। हुँ, बट इसमें पूरा दिया हुआ है कि कैसे ये सारी चीजें हुँ, कर सकते हैं। तो दैट इज द एम एंड ऑब्जेक्टिव। अगर आपके पास कैश हुँ, है, देन दे वांट टू सी कि तुम्हारे पास कितना कैश है, how are you spending it, where are you spending it, what things are you spending. So that is the हुँ, main objective with digital euro, yeah, any CBDC for that matter. हुँ, So it is important to learn the difference between Bitcoin and any हुँ, CBDC for that matter, कि राइट, सारे का फंक्शन वही है। हुँ, बट ऑन द अदर हैंड, अगर सेम चीज अगर यूरोप used Bitcoin as its reserve currency or for हुँ, settlement between countries, it would have been हुँ, transparent. ऐसा नहीं होता हुँ, कि कोई नहीं देख सकता, किसी को नहीं पता। यहाँ पे हुँ, only the हुँ, European Central Bank can see हुँ, what transactions are happening. हुँ, तो it's like a top-down hierarchy. हुँ, It हुँ, is not good for any democracy for that matter. राइट। सिटीजन को समझना चाहिए कि तुम अपना जो टाइम है, अपनी एनर्जी, अपनी स्किल है, वो Yeah, ऐसे मनी के लिए क्यों ट्रेड करोगे कि जो मनी कोई भी एक एंटिटी गवर्नमेंट आराम से इश्यू कर सकती है, उसकी उसको डीवैल्यू कर सकती है, तुम्हें रोक correct. सकती है, मतलब तुम पूरा तुम्हारा टाइम और एनर्जी पे कंट्रोल कर रही है। सो लाइक हाउ कैन यू बी हैप्पी? तो खुद ही गवर्नमेंट प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और उसके बाद तुमसे डिफरेंट डिफरेंट टैक्स लेके सोल्व करने की ट्राई करेगी और उसमें 100 रुपए में से मुश्किल से 10 रुपीज़ ही पहुँचेगा। 90 रुपीज़ तो पूरा उसमें करप्शन में चूसा लिया, मतलब लोग खा जाएँगे बीच में सारी चेन में। Yeah, क्योंकि तुमने ही उनको दिया है सारे राइट्स, गवर्नमेंट को तुमने ही दिया है, लाइक consent. तो है ना? Terms तो and ये conditions लाइक check. हाँ, मतलब अब पहले मैं गवर्नमेंट को गाली देता था, अब मैं लोगों को बोलता हूँ कि लोग तुम्हारी गलती है, तुम जो भी परेशान हो सब एज़ अ पीपल सबकी मिल के गलती हुई है। आज मैं पता है एक नई चीज़ क्या पढ़ा, लाइक मुझे पता चला, मैं थोड़ा देख रहा था लाइक कि कैसे-कैसे मैनिपुलेशन हो कर रहे हैं ये लोग, कैसे फूड में लाइक टूथपेस्ट में दे पुट फ्लोराइड्स। आई विल रिकमेंड एवरीवन कि मैंने थोड़ा स्टडी भी किया है और काफ़ी प्रूफ भी देखे कि फ्लोराइड लाइक वी शुड नॉट डू टूथपेस्ट, लाइक वी शुड नॉट यूज़ टूथपेस्ट, उसमें फ्लोराइड होता है और उससे हमारी जो थिंकिंग कैपेसिटी की जो ग्लैंड्स होती है वो अ, उसमें कैल्सिफिकेशन हो जाता है और हमारी थिंकिंग Hmm. कैपेसिटी कम होती है। वी हम स्लेव बन जाते हैं माइंडसेट से, लाइक इट अफेक्ट्स अस। तो टूथपेस्ट हम डालते हैं मुँह में, फ्लोराइड का आप देखना, जब फ्लोराइड पानी में भी वो लोग फ्लोराइड डालते हैं। हम जो टैप वाटर पी रहे हैं उसमें भी फ्लोराइड है। सो Hmm. लाइक उन्होंने पानी में भी कंट्रोल किया, बट उसके बाद मुझे पता चला कि म्यूजिक लाइक विल कोई आगे सेशन में हम करेंगे, लाइक आई एम रिसर्चिंग, बट द 432 वर्ड्स, लाइक उन्होंने ड्यूरिंग 100 साल पहले हिटलर के कोई जनरल था, उसने म्यूजिक में स्टैंडर्डाइजेशन चेंज कर दिया था फ्रॉम 432 हर्ट्ज टू 440 हर्ट्ज। तो लाइक म्यूजिक से
they can create the anxiety among listeners. और सो एंड यूट्यूब का जो पूरा मतलब कि जो म्यूजिक में जो ए जो सी डी ई ये सब डिफरेंट सुर होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, गिटार में जो ट्यूनिंग करते हैं, तो उसमें जो ए जो है ना वो 432 हर्ट्ज था। उन्होंने बोला कि ए 432 हर्ट्ज नहीं होगा, 440 हर्ट्ज होगा। तो एंड दैट इज हार्मफुल। बहुत सारे रिसर्च पेपर है, उससे तुम्हारे में बॉडी में डिजीज आता है। एंड 432 हर्ट्ज इज अ क्योरिंग फ्रीक्वेंसी। सो ये भी देख रहा हूँ, बट या लाइक दे आर ट्राइंग। अब ये कि लाइक फियाट ही उनका एक टूल्स नहीं है। लाइक अब इसमें रोथस्चाइल्ड इन्वॉल्व है, रॉकरफेलर इन्वॉल्व है, सारे इन्वॉल्व है। लाइक देयर आर पेपर्स। एंड अगर सिर्फ इफ यू सर्च म्यूजिकल कल्ट कंट्रोल, सीधा डिफरेंट कितने सारे पेपर्स आएंगे विद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, जिसमें रॉकरफेलर फाउंडेशन ने प्रमोट किया है रिसर्च के लिए। सो ठीक है। सो या उसका सॉल्यूशन क्या है, दैट वी विल डिस्कस इन सम लेटर सेशन कि इसका सॉल्यूशन क्या है। बट या दे आर प्रोग्रामिंग अस थ्रू म्यूजिक, दे आर प्रोग्रामिंग एवरीबॉडी थ्रू म्यूजिक। चलिए, सो केन्या में बहुत कुछ चल रहा था इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस, द रीसेंट टैक्स इंक्रीज जो किया था गवर्नमेंट ने, केन्यन गवर्नमेंट ने, तो उसके चलते प्रोटेस्ट हुआ था। एंड प्रोटेस्ट में हमने लास्ट टाइम भी कवर किया था कि a lot of Kenyan protesters held up a placard saying कि Bitcoin is a solution. That was happening. But the main issue ये थी कि लोग, मतलब the government, Kenyan government was अंधाधुंध टैक्स लगा रहे थे, इंक्रीज कर दिया था। तो प्रोटेस्ट was inevitable, and बाहर बहुत सारे लोग आए and it turned out ugly, and बहुत सारे इलेक्टेड ऑफिशियल्स को हार्म करने चले गए थे। सो दे एक्चुअली फ्लीड फ्रॉम द सीन, गाड़ी में बैठे और निकल गए। एंड इसलिए वो टैक्स प्लान जो था, जो प्रपोज किया था, दे विड्रू इट, केन्यन प्रेसिडेंट विड्रॉ टैक्स प्लान। तो ये हुआ प्रोटेस्ट के बाद। नाउ प्रोटेस्ट इसलिए हुआ बिकॉज few people at the top, they told कि ठीक है, we have no other solution, टैक्स बढ़ाते हैं, and बढ़ा किया, and that is why you see that result वहाँ पे। So that's what, मतलब this is happening। बट ये होता दिखेगा हमें, राइट? लाइक अब हर कोई ट्राई करेगा न्यू टैक्स डालने की। इंडिया में भी अभी हाईएस्ट टैक्स है, लाइक जीडीपी टू टैक्स रेशियो इज द हाईएस्ट इन आफ्टर द इंडिपेंडेंस। Okay. So it is 11.5%. So जितना भी जीडीपी हो रहा है उसमें 11.5% डायरेक्टली गोज टू द गवर्नमेंट। इट इज द हाईएस्ट रेशियो में भी। सो आप देखो, मतलब गवर्नमेंट कितना चूस रही है, सारा एनर्जी चूस रही है, और लाइक बदले में क्या मिल रहा है हमें? सब कुछ महंगाई और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरता हुआ, सब यही दिखेगा। This is happening across the world। अगर IMF जैसी बॉडी यूएस को वार्न कर रही है कि it needs to address its debt burden का solution तुरंत करना होगा, तो हाँ, यहाँ पे लिखो, देखो, debt to GDP ratio hitting 140% by 2032 का prediction है। So this is not just Kenya का या एक छोटे country का problem, and because everything is pegged to US in some form or the other। If US defaults in couple of months, years, जो भी कह लो, it will affect every single person in the world। because जितना भी आप समझो कि ठीक है, we are national, हम आत्मनिर्भर हैं, we are only self reliant, आपको नहीं पता कि बैकग्राउंड में कितनी सारी चीजें चल रही हैं कि which will directly or indirectly affect you। so you cannot be living in a shell, you have to look at the bigger picture and then take your decisions, जो भी करना है आपको। इसके चलते देयर वाज अनदर थिंग कि गवर्नमेंट बेच रहा है इट्स बिटकॉइन रिजर्व्स, द यूएस गवर्नमेंट। तो जर्मनी एंड अमेरिका जो बेच रहे थे द सेम बिटकॉइन की। नहीं, they say $300 per ounce, like when did they? नहीं, ये गोल्ड प्राइस का है, राइट? यूके गोल्ड रिजर्व को लेस देन 300 पर आउंस बेचा था जब उन्होंने अनाउंस किया था 1999 में भी। हाँ, तो ये कंपैरिजन दिखा रहे हैं कि
जब 288 को बेचा था, now it has become 1282 in 2019. अब तो आई थिंक ऊपर चढ़ गया होगा. अभी it is 2100, हाँ. 2200 or more than 2200 per ounce. So the same thing, same mistakes Germany and America are making by selling their seized Bitcoin. एक तरीके से अच्छा है कि गवर्नमेंट के पास ना रहे, तो it will be spread across retail investors who are willing to buy this, or corporations, जो भी कहें. So in a way it's good for Bitcoin. Right. Yeah. But they are making mistake for themselves. When someone tells कि Bitcoin is too complicated to understand, please show them this infographic. This is only for US dollar system. अगर आप, and this is the only available Indian system में ऐसा कहाँ है, किसने बनाया नहीं है अब तक, and I don't think इतना transparent है भी Indian rupee system. तो once you realize कि how complex everything is, आपको लगेगा Bitcoin in terms of this is very simple. It follows one monetary policy, 21 million ka cap. Every block will happen 10 minutes. Block subsidy jo hoti hai, that will be produced. And every 4 years, roughly 4 years, there will be halving of the supply schedule. That's it. Itna simple hai compared to any of the monetary systems across the world. So, yeah. और जितना कॉम्प्लेक्स करते हैं उतना ये लोग फिर ज्यादा ही हर जगह से मैनिपुलेट कर सकते हैं ना, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं सिस्टम को. करेक्ट. और चार्जेस भी बढ़ते हैं. फेडरल रिजर्व में यहाँ पे जो है, every person who is very close to this, वहाँ पे you will have the Cantillon effect. Cantillon effect मतलब आपको अगर पैसा पहले प्रिंट हो रहा है फेडरल रिजर्व से, जो भी फेडरल रिजर्व के पास रहेगा, आपका ट्रेजरी डिपार्टमेंट या जो भी, they can buy assets first, right? Because they have the first hand information. So it is insider information कह लो या जो भी कह लो. वही है. इसको देखने के लिए you'll have to understand the bigger picture, and for that you'll have to zoom out first. You have to unlearn a lot of things. आपको अपनी conditioning तोड़नी होगी, which has been told for ages के नहीं, you have to think a certain way, वही एक सही तरीका है. That is when you'll realize कि there is numerous perspectives which are both good and bad. अगर आपको देखने होगा, you have to be a judge for yourself and then think कि क्या करना है. That's pretty much it. आज की सेशन का ज्ञान and the news that we've covered. Right. And like guys, बताओ आपको कैसा लगा सेशन. और like we are going to live on YouTube and Nostr. Yes. So like उसके बाद I think आप लोग हमसे live interact भी कर पाओगे. Yeah. I think we can announce in the next session, in the first. We are waiting for a benchmark, है ना, Pavik? But we can announce in the first few minutes of the podcast. Yeah. And going live stream will help viewers also. Right. So much. They can ask live question, so many things. Yeah. We can set us a fixed time, I think maybe. Correct. So it can be apart from the ones that we are doing right now. So we can do this weekly coverage का scene. And अगर आपको किसी चीज का question पूछना, we can bring up a topic and we can start a discussion. जैसे आप अभी music के बारे में बोले थे, the whole case of that. We'll start a discussion about that. जो live session को join करना है वो करें. They can ask their questions. They can have a discussion with us. Okay. That we can do. Like we can start live session with the different series, right? Yeah. Different weekly series. Yeah. Chaliye, for this week, thank you so much for tuning in. Bhavik, thank you guys. Thank you guys. Thank you for joining the show. Next week we have another special guest. Dhannu करके एक person है. They will be making an appearance. Right. Person. Right. La. Yeah. थोड़ा सस्पेंस रहता है. Entity.
Yeah. In the next episode, you will meet the new guest. Yes. New उनका guest separate will be screen भी there. रखना है क्या? Do we have to have a separate screen, camera for? रख सकते हैं, right? Yeah, कर सकते हैं. But I don't think she will sit for a long time. बहुत ही restless है ना? Yeah, she is a curious. Yeah, very curious. Yeah. चलिए, see you. Thank you guys. See you next Okay, week. guys, thank you.